Hello students, I am Anju Prajapat and welcome to our YouTube channel Krishnam Group of Education. Today we going to discuss chapter 15 of EVS of class 5th. Eat when you need. Okay? When you feel hungry, then you eat and you need some food. Why did the food get spoiled? Spoiled it means खराब होना. Why did the food get spoiled? Food क्यों खराब हो जाता है? The summer vacation had started. Okay, now we learn this chapter through a story. Okay, the summer vacation had started. Harpreet and Razi were very happy as they came to know that the next day their parents were taking them to Jaipur to meet their grandfather. हरप्रीत एंड राजी वर वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश हो जाते हैं बिकॉज दे केम टू नो दैट नेक्स्ट डे वो कहाँ जा रहे हैं? अपने ग्रैंडफादर से मिलने जयपुर जा रहे हैं. ओके, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी. Everybody was busy making arrangements for the trip. Okay, it is very long journey and everybody was busy making arrangements like cloth वगैरह रखना. ओके, फ्रूट्स और फूड वगैरह पैक करना. Their mother woke up early in the morning. Okay, their mother woke up early in the morning and cooked potato vegetable which we called आलू की सब्जी. Pulses it means दाल and पूरी. Okay, उसकी मदर ने क्या क्या बनाया? Potato vegetables, pulses and पूरी. She packed the tiffin for the journey and kept pickle. Pickle it means achar and marmalade it means murabba. Marmalade it means murabba in it. उसकी मम्मा ने इन सबको पैक किया. पोटैटो वेजिटेबल्स, पल्सेस, पूरी, पिकल एंड मुरब्बा. ओके, marmalade. They took a big water bottle also along with them. और उन्होंने अपने साथ एक वाटर बॉटल भी रखी. They took a big water bottle also along with them. They started their journey by train. Okay, और उन्होंने ये जर्नी किससे तय की? ट्रेन से. ओके, शुरू की. Early in the morning at 6 a.m. there were many hawkers. हॉकर्स इट मीन्स फेरी वाले, जो बेचने वाले नहीं होते, जैसे सेवरी स्नैक्स इट मीन्स आलू बड़े, नमकीन और भी अदर स्नैक्स आइटम्स वगैरह. ओके, दे आर कॉल्ड हॉकर्स. सो देयर वर मेनी हॉकर्स इट मीन्स फेरी वाले इन द ट्रेन सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेवरी. सेवरी इट मीन्स टेस्टी स्नैक्स लाइक आलू बड़े, नमकीन. Okay, the children started being stubborn. Stubborn it means जिद करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. For eating them, जो वो फेरी वाला बेच रहा था ना, हॉकर, उनको खरीदने के लिए बच्चे जिद करने लगे. The children started being stubborn for eating आलू बड़े, नमकीन etc. Their father told them that mother had cooked a very good food for the journey and we will eat that first. Okay, पहले हम क्या खाएंगे? जो आपकी मदर ने पकाया है. First we eat. Mother had cooked very good food. Okay, which we eat. As soon as the mother opened the tiffin, जल्दी से जल्दी मदर ने भी टिफ़िन खोल लिया. शी सॉ दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड. लेकिन जब मदर ने टिफ़िन ओपन किया तब उन्होंने क्या देखा?
कि दाल स्पॉइल हो गई है, इट मीन्स खराब हो गई है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ रेलवे प्लेटफॉर्म। ओके, नाउ राजी asked her mother that how did the dal get spoiled. Then Raji asked her mother कि मम्मा ये दाल कैसे खराब हो गई? Why? How did the dal get spoiled? Then mother told that dal got spoiled because of excessive heat. ज़्यादा गर्मी होने के कारण in the summer season I should not have cooked it. मुझे इसे नहीं पकाना चाहिए था। सो ऑलवेज कंज्यूम फ्रेश फूड, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा फ्रेश फूड ही खाना चाहिए, ताज़ा बना हुआ खाना ही हमें खाना चाहिए, क्योंकि जो बहुत पहले पकाया हुआ होता है वो स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। देयर आर सम क्वेश्चंस, वी discuss these questions and try to answer these questions. Okay, now first question is, how must have the mother come to know that the dal had spoiled? मदर ने कैसे जाना कि दाल स्पॉइल्ड हो गई है? हाउ मस्ट हैव द मदर कम टू नो दैट दाल हैड स्पॉइल्ड? ओके, the mother come to know that the dal had spoiled from the smell and taste of the dal. Okay, मदर ने उसकी स्मेल से जाना कि वो दाल है वो स्पॉइल हो गई है। ओके, some other food items were also there. Why only the dal had spoiled? तो वहाँ पे बहुत से आइटम थे, केवल दाल ही क्यों खराब हुई? ओके, सम अदर फूड आइटम्स वर ऑल्सो देयर, वाई ओनली द दाल हैड स्पॉइल्ड? बताओ क्यों? बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दाल वॉज मोर। ओके, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दाल वॉज मोर, दैट इज वाई द दाल हैज स्पॉइल्ड ड्यू टू समर। ओके, उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी और इसी कारण वो समर में जल्दी से खराब हो गई, गर्मी से जल्दी से खराब हो गई। Why did the potato vegetables not spoil? Why did the potato vegetable not spoil? Because potato vegetables is cooked by frying it in oil. क्योंकि potato vegetables को ऑयल में फ्राई करके कुक किया जाता है and it is almost dry and no water content is there. So वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाती है और उसमें वाटर कंटेंट नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी से खराब नहीं होती है। सो आवर आंसर इज potato vegetable is cooked by frying it in oil and it is almost dry and no water content is there, so potato vegetable not spoil. Had they eaten the potato vegetables after 2 days, would it be edible then? क्या ये अब तब भी खाने लायक थी क्या? अगर वो 2 दिन बाद में खाते तो क्या ये पटेटो वेजिटेबल्स वो खा सकते थे? वो खाने लायक थी क्या? एबल टू ईट? क्या आप खा लेते हो 2 दिन पहले की सब्जी? नहीं खाते ना। सो नो, इट वुड नॉट हैव बीन एडिबल इज देयर। ओके, वो तब वो खाने लायक नहीं रहती। विच फूड आइटम विल नॉट स्पॉइल इवन आफ्टर 2-3 days? पूरी, पिकल, मार्मलेड और पटेटो वेजिटेबल्स। इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जो 2 और 3 days में खराब नहीं होता है? विच फूड आइटम विल नॉट स्पॉइल्ड इवन आफ्टर 2-3 days? पूरी, पूरी भी खराब हो जाती है। पिकल खराब नहीं होता है, पिकल नॉट स्पॉइल्ड बिकॉज in pickle oil is there and oil and
vinegar etc are in pickle, so pickle is not spoiled. marmalade के अंदर भी शुगर होता है, मुरब्बा, ओके, मुरब्बे में शुगर होता है, इसलिए वो भी खराब नहीं होता है. और पटेटो वेजिटेबल्स, ये तो खराब हो जाती है फटाफट, ओके, 2-3 डेज में तो खराब हो ही जाती है. सो pickle and marmalade food item will not spoil even after 2-3 days. Now Raji asked her mother, "Mother, why the pickle sauce and the potato vegetable did not spoil easily?" ओके, तो राजी ने पूछा, मम्मा ये जो पिकल है, सॉस है, पटेटो वेजिटेबल्स है, ये फटाफट स्पॉइल क्यों नहीं होते? देन फादर टोल्ड हर दैट, तब पापा ने उन्हें बताया, द पटेटो वेजिटेबल इज कुक्ड बाय फ्राइंग. ओके, then father told her that the potato vegetable is cooked by frying it in oil and it is almost dry, no water content is there. Similarly, pickle has oil, salt and vinegar in it and sauce has preservatives. Okay, preservatives उसमें केमिकल डाला जाता है जिससे वो खराब नहीं होता है सॉस में, एंड पिकल में ऑयल, सॉल्ट, विनेगर वगैरह होते हैं, इसलिए खराब नहीं होता. ओके, दैट इज वाई दीज फूड आइटम्स डिड नॉट स्पॉइल. ओके, इसलिए ये आइटम्स जल्दी से स्पॉइल नहीं होते हैं. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ स्पॉइल्ड फूड. ओके, this bread is spoiled and this roti is also spoiled. Roti, it means chapati. There is a growth. Okay, there ये is है. Okay, there is a growth of microorganism in the food due to moisture. Okay, इसमें जो ऑर्गेनिज्म इट मीन्स स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड में ग्रोथ करने लगते हैं. किसके कारण? ड्यू टू मॉइस्चर इट मीन्स नमी के कारण. एयर एंड टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर एंड टेम्परेचर के कारण है जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड में ग्रोथ करने लगते हैं. एज अ रिजल्ट देयर इज अ चेंज इन इट्स स्मेल एंड टेस्ट, और यही कारण है कि इसकी फूड की स्मेल और टेस्ट में अंतर आने लगता है, चेंज आने लगता है. सच टाइप ऑफ फूड स्पॉइल्स एंड इज नो मोर एडिबल, इसलिए ये जो फूड होता है इस टाइप का वो स्पॉइल हो जाता है और खाने लायक नहीं रहता है. ओके, सच टाइप ऑफ फूड स्पॉइल्स एंड इज नो मोर एडिबल. Different types of chemicals are used for preservation of the food, और different type के chemicals हैं वो preservation it means खाने को सुरक्षित रखने के लिए यूज लिए जाते हैं. ओके, explore and write the answer of the following. We try. If they are not preserved, then फूड आइटम दैट स्पॉइल इन 2-3 days, ऐसे कौन से फूड आइटम है जो 2-3 दिन में स्पॉइल हो जाते हैं? लाइक वेजिटेबल्स, दाल, मिल्क एंड रोटी आर द फूड आइटम्स दैट स्पॉइल इन 2-3 days. ओके, फूड आइटम दैट स्पॉइल इन 3-4 days. Which are the food items that take 3 and 4 days to spoil? Okay, so bread, paratha, dry potato, vegetables, dahi etc are the food items that spoil in 3-4 days. Food items that spoil in 1 month, a month, like laddu of gram and other flour. Okay, नमकीन, सॉस एक्सेट्रा. ओके, लड्डू, नमकीन, सॉस एक्सेट्रा आर द फूड आइटम्स दैट स्पॉइल इन अ मंथ.
फूड आइटम्स दैट डू नॉट स्पॉइल इवन अ ईयर, ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो ए होल ईयर में भी ख़राब नहीं होते हैं? लाइक पिकल, जैसे आप लोग पिकल इट मीन्स अचार बनाते हो, वो पूरे थ्रू आउट द ईयर लेते हो ना, उसे ईट करते हो, खाते हो, तो वो ख़राब नहीं होता है। तो सो पिकल, पापड़, marmalade, wheat, rice are the food items that do not spoil even a year. So food hygiene. In summer season, food spoils at a faster rate. समर सीजन में फूड जल्दी से स्पॉइल हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेन एक्टिव. टू prevent the food from spoiling, we cover it with a sieve and keep it in a cool place. हमें इसे किसी चीज़ से कवर करना चाहिए और इसे कूल प्लेस में रखना चाहिए, लाइक रेफ्रिजरेटर. ओके, इफ अ रेफ्रिजरेटर इज देयर देन वी कीप द फूड इन इट. After some time, the hawkers came again. Harpreet and Razi asked to buy something from them. Their father made them understand that we should not eat the food items prepared outside. तो उनके फादर ने उसे समझाया कि हमें बाहर का आइटम नहीं लेना चाहिए, because as those people do not maintain cleanliness and proper food hygiene. क्योंकि ये लोग अच्छे से क्लीननेस का और फूड हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं. सो इट इज़ अ क्वेश्चन, हाउ डू वी मेंटेन क्लीननेस एंड फूड हाइजीन वाइल कुकिंग एट होम. हम घर में कुकिंग करते समय क्लीननेस और फूड हाइजीन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? सो वी डिस्कस सम पॉइंट्स लाइक we should wash our hands before eating. Okay, always we should wash our hands before eating. We should wash vegetables and fruits before eating. And cleanliness of surrounding area of the kitchen. Okay, हमें हमेशा क्लीनिनेस का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किचन में सब चारों तरफ क्लीनिनेस हो. So cleanliness of surrounding area of the kitchen. We should use clean utensils. हमें हमेशा clean utensils बर्तन का उपयोग करना चाहिए. We should store food in covered containers. Okay, we should store food in covered containers. हमें हमेशा फूड को कवर्ड कंटेनर्स में ही रखना चाहिए. ओके, इट इज़ एक्टिविटी, सो यू कैन डू दिस. आर द फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट न्यूट्रिशियस और नॉट? ऑल द नो. ओके, नो, द फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट नॉट न्यूट्रिशियस. Okay, because they do not have, because they don't care of hygiene and cleanliness. वो किसी भी cleanliness का और फूड हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं. Do not leave food. हमें खाना नहीं छोड़ना चाहिए. Do not leave food. After a long journey, everyone reached grandma's house. All were very happy after meeting her. At the time of dinner, everyone ate the vegetables. और वो वेजिटेबल्स किस किस की थी? केर सांगरी, कड़ी राइस, लेडी फिंगर, चपाती, सलाद, एक्सेट्रा. But the children left some food in their dishes. लेकिन बच्चों ने कुछ फूड अपनी डिशेस में छोड़ दिया था. Their grandfather made them understand that
We should never leave the leftover food. This results in wastage of food. We should take only that much quantity of food in our dish which we actually want to eat. हमें कभी भी अपने डिश में खाना नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उतना ही लेना चाहिए. वी शुड टेक ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड जितना हम खा सके, विच वी एक्चुअली वांट टू eat. Ultimately, this will help in saving of grains and cereals of our country. So, you must have visited any marriages, party, religious function, etc. many times. Why there is more wastage of food at these collective occasions. आप किसी भी शादी, पार्टी, रिलीजियस फंक्शन एक्सेट्रा में गए होंगे, आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ पे फूड का वेस्टेज होता है. लेकिन ऐसा क्यों होता है? वाई ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पीपल टेक मोर फूड देन दे कैन ईट. क्योंकि लोग अपनी खाना है वो ज़्यादा ले लेते हैं जितना वो खा नहीं सकते. और वहाँ पे बहुत सी वेराइटी भी होती है, वो सारी वेराइटी डाल लेते हैं और बाद में वो खा नहीं पाते हैं. सो दे कैन नॉट ईट दिस फूड. सो द फूड इज वेस्टेज. What measures can be taken to prevent this wastage of food? हमें इस वेस्टेज को रोकने के लिए क्या मेजरमेंट्स रखने चाहिए? ओके, सो हमें क्या क्या मैनेजमेंट्स रखने चाहिए इन सभी को रोकने के लिए? वी शुड टेक ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड इन अवर डिश. ओके, हमें केवल उतना ही फूड लेना चाहिए जितना हम खा सके. वी wants to eat also food should be taken in proper way by sitting. और हमेशा प्रॉपर सिटिंग में ही खाना खिलाना चाहिए और जो वो चाहते हैं वो ही उन्हें रखना चाहिए. इस तरीके से हम वेस्टेज होने से बचा सकते हैं. If the place is not cleaned properly after the ceremony, that the people in the nearby area will face what type of difficulties? Okay, it will make bad odor and spread disease in the surrounding area. Okay, अगर वहाँ पे क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई तो वहाँ पे बैड स्मेल है, ऑडोर इट मीन्स स्मेल होगी और वहाँ पे बीमारियाँ फैल सकती है. ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इंटरवल इन योर स्कूल दैट हु ईट्स हिज फूड कम्प्लीटली एंड हु लीव्स द लेफ्ट ओवर. कई अपना फूड कंप्लीट कर लेते हैं, कई छोड़ देते हैं. वेयर इज़ द वेस्ट फूड थ्रोन एंड हु इज़ कंज्यूमिंग दैट. दिस वेस्टेज फूड इज ईटन बाय स्ट्रे एनिमल्स. जो आप लोग फेंक देते हो वो स्ट्रे एनिमल्स ईट करते हैं उसे. वॉट टाइप ऑफ एनवायरमेंट इज सीन एट द प्लेस वेयर द लेफ्ट ओवर फूड इज बींग डिस्पोज्ड. द leftover food is being disposed has a very dirty. ओके, जहाँ पे इस फूड को फेंका जाता है वो प्लेस बहुत डर्टी लगता है. हैज़ अ वेरी डर्टी एंड पॉल्यूटेड एनवायरमेंट एंड फील्ड विद फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर एनिमल्स. और वो वहाँ पे बहुत से फ्लाइज इट मीन्स मक्खियाँ, मॉस्किटोज और अदर एनिमल्स आ जाते हैं. like this. Okay, animals eating waste food. Methods of preservation. Fruits, vegetables and cooked food spoil if they are stored for long time. The microorganism and fungus develop on them and contaminated that food. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगस उसमें डेवलप हो जाते हैं और वो फूड को कंटेमिनेटेड इट मीन्स स्पॉइल कर देते हैं. इफ़ वी कंज्यूम द कंटेमिनेटेड फूड वी फॉल इल. अगर हम ऐसा खाना खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? बीमार. ओके, वी फॉल
ill in refrigerator. Also, this food remains fresh for some time only to protect the food from getting spoiled and store it for a long time. We adopt many methods as to make a marmalade by mixing sugar, make a thick syrup, sharbat, make a pickle by adding salt, vinegar and ऑयल. ओके, हम कैसे लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ वेजिटेबल्स को. मरमलेड, टू मेक मरमलेड, मुरब्बा बना के जिसमें हम क्या मिक्स करते हैं, शुगर. मेक अ थिक सिरप लाइक शरबत. मेक अ पिकल बाय एडिंग सॉल्ट, विनेगर एंड ऑयल. We preserve the food items like ladyfinger, cluster beans, it means guar phali. Fenugreek, it means methi, mint, potato chips, etc. by drying them in sunlight. इनको हम sunlight में ड्राई करके प्रिजर्व कर सकते हैं. द कैंड और सील्ड फूड डज नॉट स्पॉइल बिकॉज इट इज़ वैक्यूम पैक्ड. और जो कैंड और सील्ड फूड होता है वो स्पॉइल नहीं होता है क्योंकि उसमें वैक्यूम पैक्ड होता है, उसमें कोई भी एयर नहीं होती है, सो वो स्पॉइल नहीं होता है. यूज़ ऑफ सम केमिकल रेजेंट्स कैन सेव एंड प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो केमिकल रेजेंट्स होते हैं वो फूड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल्स ऑफ सम फूड्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन आपको बताने हैं. पोटैटो चिप्स को आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हो. हाउ यू प्रिजर्व पोटैटो चिप्स बाय ड्राइंग इन सनलाइट. ओके. मैंगो पिकल्स बाय एडिंग ऑयल एंड क्लस्टर बीन्स ड्राइंग इन सनलाइट. पीज स्टोर इन रेफ्रिजरेटर. सीरियल्स केमिकल रेजिमेंट्स. ओके, सीरियल्स को हम केमिकल रेजिमेंट्स के थ्रू प्रिजर्व कर सकते हैं. आफ्टर द लंच everybody went to visit the Amer fort. There they saw many kinds of fruits on the fruit juices shop. Harpreet was very much surprised to see carrot, apple and cherry and said these fruits are available in summer season also. कि ये जो foods हैं वो summer season में भी available है. कैसे? His grandfather told him that nowadays all kinds of fruits and vegetables are available in all the seasons. ग्रैंडफादर ने बताया कि इन दिनों में अब किसी भी तरह का फूड सभी सीज़न में अवेलेबल होता है. विच unseasonal fruits vegetables are available in your city or village? In my city, apple, carrot, cherry, ladyfinger, cluster beans, onion, pudina, etc. are the fruits vegetables are available and these are unseasonal fruits. What is the reason that carrot, peas, tomatoes and potatoes available to us throughout the year? They can be preserved for a long time by chemical regiments in cold storage. Okay, these vegetables can be preserved for a long time by chemical regiments in cold storage. For how long the food items generally found at home can be preserved? Like oil, sugar, salt, citric acid वगैरह हम मिला के क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. दिस इज़ द रेसिपी ऑफ चटपटा चूरन. ओके, चटपटा चूरन बनाने की ये रेसिपी है. आप इसे पढ़िए और बनाइए. एंड वी लर्नड from this chapter the microorganisms are responsible for spoilage and contamination of the food. कौन रिस्पॉन्सिबल होता है स्पॉइलेज एंड कंटेमिनेटेड फूड के लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो समर में जल्दी से ग्रोथ करने लगते हैं. द फूड आइटम्स सोल्ड इन द मार्केट आर नॉट हाइजीनिक, क्योंकि वो बिल्कुल भी क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखते हैं. We should take only that much food in our dish which we want to eat.
ओके। हमें अपनी थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकें। ओके, वी डू नॉट लेफ्ट ओवर फूड इन आवर डिश। द फूड मटेरियल्स कैन बी प्रिजर्व्ड इन मैनी डिफरेंट वेज। और फूड मटेरियल्स को हम डिफरेंट तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। लाइक ड्राइंग इन सनलाइट बाय एडिंग ऑयल, ड्राइंग इन sunlight, store in refrigerator, chemical regiments, etc. are the methods of preserving food materials. So this chapter is complete. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe our channel. Thank you again.